Assalamu alaikum student. Today's topic is unit number 10, which is technology in everyday life. Today we will do reading from page number 95 to page number 96, class 9th, subject English. Now coming to the title of unit number 10, which is technology in everyday life. First of all, I'll discuss what is technology. Technology. The meaning of technology is applied science or technical methods. So the application of scientific knowledge for practical purposes. What is technology? The application of scientific knowledge for practical purposes, or in short, you can say it is an applied science. Now, coming to pre reading. What comes in your mind when you hear the word technology? When do you think technology began? According to you, when technology began? Name a few technological things that we use in our daily life. So these are general questions for brainstorming. Now coming to reading. The importance of technology in everyday lives is undeniable. Undeniable means नाकाबिले तरदीद, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता. So the importance of technology is in our daily lives is undeniable. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता. Technology plays a vital role in our life and it has added to our lives. Technology plays a vital means important role in our life and it has added to our lives. टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है और इसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है. इट हैज़ एडेड टू आवर लाइफ्स, ज़िंदगी को आसान बना दिया है. फ्रॉम किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम to any other place of your home or office, technological equipments is present in different form and manifestation. Technological equipments, technology का सामान, equipments means सामान, different forms, मुख्तलिफ किस्मों में, मुख्तलिफ शक्लों में, different forms, मुख्तलिफ शक्लों में, and manifestation और मुख्तलिफ सूरतों में. Now coming to idiomatic translation. From kitchen, bedroom, living room, bathroom to any other place of your home. और बाथरूम से लेकर आपके घर के किसी भी हिस्से में और दफ्तर में टेक्नोलॉजी से मुतालिक सामान मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में मौजूद है. In today's dynamic world, life without technology is very strenuous, if not impossible. In today's dynamic means mutaharrik world, life without technology is very strenuous. Strenuous means difficult, मुश्किल, if not possible. आजकल की मुतहरिक दुनिया में टेक्नोलॉजी के बग़ैर ज़िंदगी अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है. The offshoots of technological development have stretched out the diverse fields of health sciences, communication, agriculture, architectural, engineering and transportation system. The offshoots means शाखें. The offshoots of technological development, टेक्नोलॉजी की तरक्की की शाखें have stretched out to diverse fields. Diverse means different, मुख्तलिफ. Diverse fields मुख्तलिफ शोबों में of health sciences, communication, agriculture. Now coming to idiomatic translation. टेक्नोलॉजी की तरक्की की शाखें सेहत, health sciences सेहत, communication means मवासलात, agriculture means ज़रात, architectural means फ़न तामीर, engineering और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नकलो हमल के निज़ाम के मुख्तलिफ शोबों तक फैल चुके हैं. स्ट्रेच आउट, फैल जाना. The significance of technology will get more intelligible if we dwell on these fields in some detail. The significance, the importance of technology will get more intelligible
इंटेलिजिबल मीन्स मज़ीद समझना। इफ़ वी ड्वेल मीन्स अगर हम इसको गौर करें, अगर हम इसको गौर से देखें, गौर व फ़िक्र करना, अगर हम इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें। नाउ कमिंग टू द इडियोमैटिक ट्रांसलेशन ऑफ लास्ट लाइन। टेक्नोलॉजी की अहमियत को मज़ीद समझने के लिए हम इन शोबों की किसी हद तक तफसील देखते हैं। Below are some of the uses of technology today. Number 1, technology has been of great use in the health sciences industry. हेल्थ साइंस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। मॉडर्न electronic equipment have been discovered which have improved quality of treatment people receive at the health institution as well as increasing their survival chances for various ailments. Modern electronic equipments have been discovered. जदीद बरकी आलात दरियाफ्त हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक बरकी इक्विपमेंट, आलात या सामान have been discovered दरियाफ्त हो चुके हैं which have improved quality of treatment people which have improved quality of treatment, जिन्होंने लोगों को improved बेहतरी पैदा की है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इलाज में। पीपल रिसीव एट द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, लोग इन्हें सेहत के मराकज़ पर हासिल करते हैं। एज़ वेल एज़ इंक्रीजिंग देयर सर्वाइवल चांसेस, उनकी बका के इम्कानात बढ़ गए हैं। फॉर वेरियस एलिमेंट्स, बहुत बीमारियों के ख़िलाफ़। नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन। जदीद बरकी आलात दरियाफ्त हो चुके हैं जिन्होंने लोगों को सेहत के इदारों से मिलने वाले इलाज के मयार को बेहतर बनाया है और जिन्होंने मुख्तलिफ़ बीमारियों में उनके बका के इम्कानात में भी इजाफ़ा कर दिया है। Another notable benefit of technology is that it has enabled doctors to discover most health problems while they are still in the developing stages and treat them before they develop into advanced stages. Another notable means काबिल गौर, benefit, फ़ायदा of technology is that it has enabled doctors को इस काबिल बनाया है to discover most health problems, to discover more health problems, सेहत के मुख्तलिफ़ मसाइल दरियाफ़्त करें। while they are still in developing stages, उनके इब्तदाई मरहले में ही उनको डिस्कवर। while they are still in the developing stages, सेहत के मसाइल को उनके इब्तदाई मरहलों में ही दरियाफ़्त कर लिया जाए। एंड ट्रीट दैम, और उनका इलाज किया जाए। बिफोर दे डेवलप इनटू एडवांस स्टेजेस, इससे पहले कि वो आगे मज़ीद ख़तरनाक साबित हो। नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन। टेक्नोलॉजी का एक और काबिल मुशाहिदा फ़ायदा ये भी है कि ये डॉक्टर को इस काबिल बना चुकी है कि वो सेहत के मुख्तलिफ़ मसाइल को उनके इब्तदाई मरहले में ही दरियाफ़्त करें और आगे बढ़ने से पहले इनका इलाज कर सकें। सो द फर्स्ट was about health sciences. First thing which is discovered regarding uses of technology today is, first one is health sciences industry. Now coming to second one, which is communication. Communication means mawaslat. Communication across the globe is now easy. दुनिया भर में ज़राए अबलाग अब आसान है। The invention and use of internet has changed the world into a global village. इंटरनेट की ईजाद और इस्तेमाल ने दुनिया को एक आलमगीर गांव में बदल दिया है। What is global village? What is the meaning of global village? Global village means the world considered as a single community linked by telecommunication. What is global village? ये दुनिया एक आलमगीर गांव बन गई है। ग्लोबल विलेज मींस आलमगीर गांव। द वर्ल्ड इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगल कम्युनिटी, पूरी दुनिया एक ही कम्युनिटी के तौर पर मानी जा रही है क्योंकि इसका ताल्लुक़ एक दूसरे से टेलीकम्युनिकेशन की वजह से जुड़ा हुआ है।
हर कोई अपने मुल्क में बैठे हुए दूसरे ममालिक से बाखबर रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल विलेज और स्मॉल विलेज. ग्लोबल विलेज मीन्स आलमगीर गांव, और यू कैन से द वर्ल्ड कंसिडर्ड एज अ सिंगल कम्युनिटी linked by telecommunication. So the use of internet has changed the world into a global village. इंटरनेट के इस्तेमाल ने दुनिया को एक आलमगीर गांव में बदल दिया है. People hailing from different geographical regions can virtually communicate through video calls, emails, as well as many social media platforms. People hailing from different geographical regions. Hailing means ताल्लुक़ रखना. जोग्राफ़िकल रीजन, जोग्राफ़िकल मीन जोग्राफियाई ख़तूत से ताल्लुक़ रखने वाले, इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले. कैन वर्चुअली कम्युनिकेट थ्रू वीडियो कॉल्स. वो अब वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन. मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल, ईमेल और इसके अलावा अबलाग के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं. अब प्लेटफॉर्म्स मीन्स अबलाग के दूसरे ज़रिए. Business owners have realized the power of using internet to achieve more customers for their products easily by creating business websites where customers click on the item to buy them in the comfort of their homes. Business owners have realized. Business owner means कारोबारी मालिकान have realized, वो ये जान चुके हैं, द पावर ऑफ़ यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट के इस्तेमाल की ताकत को वो जान चुके हैं. टू अचीव मोर कस्टमर्स, जिनसे वो और ज़्यादा गाहक हासिल कर सकते हैं. फॉर देयर प्रोडक्ट्स, अपनी मसनूआत के लिए. ईज़िली, आसानी से. बाय क्रिएटिंग बिजनेस वेबसाइट्स, अपनी बिज़नेस वेबसाइट बनाकर वो बहुत सारे गाहक हासिल कर सकते हैं. वेयर कस्टमर क्लिक ऑन द आइटम्स, जहाँ पर गाहक किसी भी शय पर क्लिक करता है. टू बाय देम इन कम्फर्ट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों में आराम से बैठकर वो इन अशिया पर क्लिक कर सकता है. नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन. कारोबारी मालिकान भी इंटरनेट के इस्तेमाल की ताकत को समझ चुके हैं ताकि वो अपनी मसनूआत के लिए आसानी से ज़्यादा गाहक पैदा कर सकें. इस मकसद के लिए उन्होंने तिजारती वेबसाइट बनाई हैं जहां पर गाहक घर से सुकून के साथ मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीदने के लिए इस पर क्लिक कर सकता है. In the past, communication was limited to letter writing and waiting for postal services to deliver your messages. In the past, माजी में मवासलात का निज़ाम ख़तूत लिखने और पैगामात पहुँचाने के लिए डाकखाने की सहूलियात के इंतज़ार तक महदूद रहता था. Today, technology has made communications easy. आजकल टेक्नोलॉजी ने मवासलात को आसान बना दिया है. नाउ यू कैन ड्राफ्ट अ बिजनेस मैसेज एंड ईमेल इट और फैक्स इन अ सेकेंड विदाउट एनी डिलेज. नाउ अब आप कारोबारी पैगाम लिख कर फैक्स या ईमेल के ज़रिए चंद सेकंड्स में बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुंचा सकते हैं. The recipient will get the message and will reply you instantly. The recipient, वसूल करने वाला. पैगाम वसूल करने वाला पैगाम वसूल कर ले और करने के बाद आपको फ़ौरी जवाब दे सकता है. विदाउट एनी डिले, बग़ैर किसी ताख़ीर के. इंस्टेंटली, फ़ौरन. Similarly, इसी तरह telephone has evolved over the decades in terms of technology as the scientists have realized the need for people to communicate at any time, anywhere. Similarly, इसी तरह टेलीफोन कई अशरों के दौरान टेक्नोलॉजी के लिहाज से इर्तिका के अमल से गुज़र चुका है. Evolved over the decades. Evolved means इर्तिका के अमल से गुज़रना. Over the decades, decades means अशरों से. In terms of technology, as the scientists have realized,
एज द साइंटिस्ट हैव रियलाइज्ड, और साइंसदानों को किसी भी वक्त और किसी भी जगह रब्ता करने की ज़रूरत का एहसास हो चुका है. This necessity has led to invention of portable cellular phones which have taken communication a notch higher as people can network easily. ये ज़रूरत मोबाइल फ़ोन की ईजाद का बाइस बनी जिसने मवासलात को एक दर्जा बुलंदी पर पहुंचा दिया है. नॉच एक दर्जा बुलंदी पर पहुंचा देना, एक दर्जा बुलंदी पर पहुंचा दिया है क्योंकि लोग आसानी से रब्ता कर सकते हैं. The device is also fun to use as they are coupled with extraordinary entertainment features such as games. ये इस आले का इस्तेमाल तफरी से भरपूर है क्योंकि इसमें गैर मामूली किस्म के तफरी खसूसियात भी हैं जैसे गेम्स वगैरह. Now coming to another importance of technology is in our daily life is that it has eliminated the bulkiness associated with paperwork. Bulkiness means ज़्यादती associated with paperwork. Eliminated means ख़त्म कर देना. Now coming to idiomatic translation, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की एक अहमियत ये भी है कि इसने कागज़ के साथ वाबस्ता काम की ज़्यादती को ख़त्म कर दिया है. With technology, information can now be stored virtually in various storage devices such as compact discs and microchips. टेक्नोलॉजी की मदद से अब मालूमात को मुख्तलिफ ज़ख़ीरा करने वाले आलात जैसा कि कॉम्पैक्ट डिस्क या माइक्रोचिप में ज़ख़ीरा किया जा सकता है. स्टोरेज डिवाइसेस ज़ख़ीरा करने वाले आलात. More so, the information stored in these technological devices is secured with passwords and codes which are only known to the proprietors of the information, making it a better way of storing confidential information. Proprietor means malikan, confidential खुफिया, information मालूमात. Now coming to idiomatic translation, इसके अलावा तकनीकी आलात में मौजूद मालूमात पासवर्ड और कोड्स के ज़रिए से महफूज की जा सकते हैं जो सिर्फ ये मालूमात सिर्फ मालिकान को मालूम होते हैं. इस तरह ये खुफिया मालूमात महफूज करने का एक बेहतरीन तरीका है. Now coming to the fourth one, we cannot fail to mention that technology has been of great benefit to agricultural industry. So the use of technology in agriculture industry, the fourth one is we cannot fail to mention. We cannot fail to mention. Fail means नज़रअंदाज नहीं कर सकते. Mention ज़िक्र करना. Benefits to agriculture industry. हम ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़िक्र को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. It's now possible to determine the climatic changes as well as climatic conditions that favor various plants. Various plants मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे. Determine मुतय्यन करना, तयन करना. अब मौसमियाती तब्दीलियों और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ पौधों के लिए मुनासिब मौसमियाती हालात का तयन करना मुमकिन हो चुका है. Likewise, today it is possible to grow crops in a desert by use of agricultural biotechnology. Biotechnology means जीनियाती technology. जीनियाती engineering. Biotechnology means जीनियाती इंजीनियरिंग. जीनियाती इंजीनियरिंग की मदद से साइंसदान बायोटेक्नोलॉजी मीन्स हयातियाती टेक्नोलॉजी. वी कैन नॉट फेल टू मेंशन दैट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. हम ज़राअत के शोबे में
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़िक्र को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. इट्स नाउ पॉसिबल टू डिटर्मिन द क्लाइमेट चेंजेस एज वेल एज़ क्लाइमेट कंडीशंस दैट फेवर वेरियस प्लांट्स. अब मौसमियाती तब्दीलियों और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ पौधों के लिए मुनासिब मौसमियाती हालात का तयन करना मुमकिन हो चुका है. लाइकवाइज इसी तरह टुडे इट इज़ पॉसिबल, अब ये मुमकिन है, टू ग्रो क्रॉप्स इन अ डेज़र्ट, के फसलें सहरा में उगाई जा सकें बाय द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी मीन्स हयातियाती टेक्नोलॉजी. इस तरह हयातियाती टेक्नोलॉजी की मदद से पौधों को इस काबिल बनाया गया है कि वो सहरा में भी उन फसलों को उगाया जा सके. With biotechnology, plants have been engineered to survive in drought condition. हयातियाती टेक्नोलॉजी की वजह से पौधे plants have been engineered to survive in drought condition. अब पौधे इस काबिल बना दिए गए हैं जीनियात की मदद से कि वो खुश्कसाली वाले हालात में भी सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनकी बका मुमकिन है. Through genetic engineering, scientists have managed to introduce traits into existing genes with a goal of making crop resistant to drought and pest. जीनियाती इंजीनियरिंग की मदद से साइंसदान मौजूदा जीन में ऐसी खसूसियात शामिल करने में कामयाब हो चुके हैं जिनका मकसद फसल को खुश्कसाली और हशरात का मुकाबला करने के काबिल बनाना है. पेस्ट मीन्स हशरात. Now coming to activity. Your activity is reading along idiomatic translation. Thank you.